رانی پور ایک سرسبز اور خوبصورت گاؤں تھا جہاں شریف نام کا چاقو چوبند بوڑھا اپنی پیاری بیٹی رخسانہ کے ساتھ رہتا تھا۔ رخسانہ ایک با ادب اور محنتی لڑکی تھی۔ یا اللہ کتنا کام ہے۔ یہ اپنے ابا کی خدمت میں بھی کبھی کوئی کمی نہیں چھوڑتی تھی۔ الحمدللہ۔ اور بوڑھا شریف بھی اپنی بیٹی سے بہت محبت کرتا تھا۔ جیتی رہو میری بچی۔ رخسانہ کی نہایت پیاری دوست مرگی چکوری بھی اس محبت بھرے گھر کا حصہ تھی اور انہی کے ساتھ رہتی تھی۔ چکوری میری پیاری دوست، جلدی جلدی انڈے اکٹھے کر لاؤ، میں گرم گرم پراٹھے بناتی ہوں، تم انڈے پکاؤ، پھر ہم سب مل کر ناشتہ کریں گے۔ ویسے بھی ابا کو کام پر جانے میں دیر ہو رہی ہے۔ ٹھیک ہے رخسانہ، میں ابھی انڈے لے آتی ہوں اور مزیدار آملیٹ بناتی ہوں، ساتھ ہی چولہے پر چائے بھی رکھ دوں گی۔ تمہیں پتہ ہے نا، جب تک مجھے صبح صبح چائے نہ ملے میرے دن کا آغاز نہیں ہوتا۔ ہاں ہاں چکوری، مجھے اچھی طرح پتہ ہے۔ چلو اب جلدی کام کرو، ویسے بھی بہت دیر ہو چکی ہے۔ پھر کیا تھا، چکوری صحن کی طرف گئی اور تھوڑی ہی دیر میں تازہ اور صاف ستھرے انڈے اٹھا لائی۔ ادھر رخسانہ گرم گرم پراٹھے پکانے لگی۔ ماشاءاللہ مزیدار۔ چکوری نے بھی دیر نہ لگائی، چولہے پر کیتلی چڑھائی اور خوشبودار پتی ڈال کر مزیدار چائے تیار کر لی۔ پھر تینوں نے مل کر سکون اور محبت کے ساتھ ناشتہ کیا۔ الحمدللہ۔ شریف اللہ کا نام لے کر کام کے لیے اپنی بیکری کی طرف روانہ ہو گیا۔ یہ صبح سویرے بڑی محنت اور صفائی سے خستہ مزیدار بسکٹ تیار کرتا اور ساتھ تازہ، نرم اور گرم ڈبل روٹیاں بھی بناتا۔ ماشاءاللہ۔ ان کی خوشبو گلیوں میں پھیل جاتی اور گاؤں والے بڑے شوق سے انہیں خریدنے چلے آتے۔ الحمدللہ۔ دوسری طرف رخسانہ نے رات کے کھانے کے لیے مزیدار پلاؤ تیار کی۔ یہاں شام ڈھلتے ہی شریف بیکری سے واپسی پر بہت سا پھل فروٹ لے کر گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ یہ سب جب کھانا کھانے بیٹھے تو اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ ارے اس وقت کون آ گیا ہے؟ کون ہے دروازے پر؟ ارے بیٹی رخسانہ، میں ہوں محلے کی خالہ جمیلہ۔ یہ بوڑھیا اس وقت یہاں کیا لینے آ گئی ہے؟ سارے کھانے کا مزہ کرا کر دیا اس کمظرف عورت نے۔ بیٹی رخسانہ، آ جائیں خالہ، آ جائیں، اندر آ جائیں۔ السلام علیکم شریف میاں۔ وعلیکم السلام جمیلہ بیگم، تشریف رکھیں، کیسے آنا ہوا؟ بس میاں، یہاں سے گزر رہی تھی تو مزیدار پلاؤ کی خوشبو آ گئی، سوچا تمہارے ساتھ کھانا ہی کھا لوں، بھوک بھی بہت لگی تھی۔ تمہیں تو پتہ ہے اس بھری دنیا میں مجھ خوبصورت بوڑھیا کا کوئی نہیں۔ ارے ہاں جمیلہ بیگم، کیوں نہیں، ہمارے ساتھ آپ بھی کھائیں، بسم اللہ کریں۔ لو جی، مان نہ مان، میں تیرا مہمان۔ مہمان تو اللہ کی رحمت ہوتا ہے۔ لاؤ بھائی لاؤ، بسم اللہ کرے اور مزیدار پلاؤ کھائیں۔ ارے واہ، مزیدار۔ ماشاءاللہ۔ اب اکثر ایسا ہونے لگا، خالہ جمیلہ روز آتی اور سب کے ساتھ کھانا کھاتی۔ ماشاءاللہ۔ مزیدار۔ کھانے کے بعد وہ بڑے پیار سے رخسانہ کے بالوں میں تیل لگاتی ماشاءاللہ۔ اور نہایت خلوص سے شریف میاں کی ٹانگیں بھی دبا دیتی۔ خالہ کے دم سے ان کے گھر میں جیسے رونق اور سکون آ گیا ہو۔ ارے واہ۔ مگر ایک دن ایسا ہوا کہ سب کھانے کے لیے بیٹھے مگر خالہ جمیلہ نہ آئیں۔ شریف فکر مند ہو کر بولا، بیٹی رخسانہ، آج تمہاری خالہ جمیلہ نہیں آئے؟ میری نظریں تو کب سے دروازے پر لگی ہوئی ہیں۔ جی ابا جی، میں بھی یہی سوچ رہی تھی کہ خالہ کہاں رہ گئیں۔ ارے تم دونوں کیوں پریشان ہوتے ہو؟ خالہ جمیلہ کو کل سے بخار ہے، اسی لیے آج وہ بوڑھیا نہیں آئی۔ مجھے تو وہ لالچی عورت ایک آنکھ نہیں بھاتی، مگر تم دونوں نہ جانے کیوں سے اتنا پسند کرتے ہو۔ ارے چکوری، کیا ہو گیا ہے؟ ایسا نہیں کہتے۔ ابا جی، ہمیں خالہ کی طبیعت پوچھنے ان کے گھر جانا چاہیے۔ بیٹی رخسانہ، تم بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو، ہم ابھی چلتے ہیں۔ جب یہ دونوں خالہ کے کچے گھر پہنچے تو دیکھا خالہ جمیلہ اکیلی بیمار حالت میں بستر پر پڑی ہیں۔ ہائے ہائے ہائے، میں مر گئی۔ خالہ، کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ بس بیٹی رخسانہ، کل سے بھوکی ہوں اور اکیلی یہاں پڑی ہوں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔
अरे जमीला बेगम, परेशान क्यों होती हैं? अल्लाह बेहतर करेगा इंशाअल्लाह। जी खाला, आप फिक्र न करें, मैं अभी आपके लिए कुछ खाने को लाती हूँ। बेटी, तुम खाना देकर चली जाओगी तो मैं फिर अकेली रह जाऊंगी। औरत जात हूँ, खूबसूरत भी हूँ और अब तो बीमार भी हो गई हूँ। मेरा अकेला रहना ठीक नहीं। अगर हो सके तो मुझे अपने साथ ले जाओ। मैं तुम्हें माँ का प्यार भी दूंगी और तुम्हारे अब्बा की खिदमत भी करूंगी और घर के कामों में तुम्हारी मदद भी कर दिया करूंगी। जी खाला, क्यों नहीं, ज़रूर। मगर आपको साथ ले जाने के लिए अब्बा की मर्जी भी ज़रूरी है। क्यों मियाँ शरीफ, तुम्हें कोई एतराज़ है मुझे अपने साथ ले जाने में? अरे नहीं जमीला बेगम, मुझे भला क्या एतराज हो सकता है। खाला जमीला ने तो जैसे शरीफ मियाँ के दिल की बात कह दी हो। खाला हिम्मत करें, उठें। जमीला बेगम, आप जल्द ठीक हो जाएगी। बेटी उठा नहीं जा रहा। शरीफ मियाँ ने खाला को बड़े प्यार से उठाया। फिर ये तीनों घर की तरफ रवाना हो गए। वहाँ पहुँचकर खाला ने खूब पेट भरकर खाना खाया और गहरी नींद सो गई। अगले दिन जब शरीफ मियाँ काम पर जाने के लिए तैयारी कर रहे थे तो खाला जमीला उनके पास आई और बोली, ये बूढ़िया इस वक्त। शरीफ मियाँ, आज मैं भी तुम्हारे साथ तुम्हारी बेकरी चलूंगी। मगर क्यों जमीला बेगम, सब खैरियत तो है? बस मियाँ, तुम्हारी बेकरी जाकर बरकत की दुआ मांगूंगी ताकि तुम्हारा कारोबार खूब चले। जमीला बेगम, अल्हम्दुलिल्लाह कारोबार तो वैसे ही अच्छा चल रहा है, मगर अगर आप साथ चलना चाहती हैं तो जरूर चलें। आपके जाने से मेरे कारोबार में मजीद बरकत हो जाएगी। इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। फिर क्या था, खाला जमीला शरीफ मियाँ के साथ बेकरी चली गईं। माशाअल्लाह। बेकरी पहुंचकर खाला जमीला ने दुआ के लिए हाथ उठा लिए और शरीफ मियाँ नमाज पढ़ने चले गए। शरीफ मियाँ के जाते ही खाला जमीला की नज़र बेकरी में रखे खस्ता बिस्किटों और नरम नरम डबल रोटियों पर पड़ी। बस फिर क्या था, खाला जमीला अपने दिल पर काबू न रख सकी। सबसे पहले उन्होंने बिस्किटों पर हाथ साफ किया, फिर एक एक करके सारी डबल रोटियां चबा गई। जब ये सब कुछ ख़त्म हो गया तो खाला जमीला की नज़र आटे पर पड़ी, वही आटा जिससे शरीफ मियाँ मज़ेदार डबल रोटियां बनाया करते थे। खाला जमीला ने वो आटा भी न छोड़ा और सारा का सारा खा गई। अभी उनका दिल भरा भी न था कि चीनी की पूरी बोरी नज़र आ गई। खाला जमीला ने वो बोरी भी खा चाट कर खाली कर दी और साथ ही देसी घी के सारे डब्बे भी पी गई। शरीफ मियाँ के वापस आने से पहले ही बेकरी का सारा सामान ख़त्म हो चुका था और खाला जमीला इत्मीनान से एक तरफ बैठी थी जैसे कुछ हुआ ही न हो। अरे ये क्या, सारी बेकरी का सामान कहाँ गया? बिस्किट, डबल रोटियां, आटा, सब कुछ गायब। और जमीला बेगम, आपके मुंह पर आटा भी लगा हुआ है। आप तो मेरी बेकरी का सारा सामान ही निगल गई। अरे कोई बात नहीं शरीफ मियाँ, इतनी सी बात पर इतना परेशान हो रहे हो? अल्लाह और देगा तुम्हें। मैंने तो बेकरी में खड़े होकर बरकत की दुआ भी कर दी है। मगर जमीला बेगम, यहाँ तो कुछ भी नहीं बचा, मेरा तो सब कुछ लौट गया। अरे छोड़ो इन बातों को, चलो अब घर चलते हैं, मुझे बड़ी जोर की नींद आ रही है। शाम होते ही खाला जमीला और शरीफ घर की तरफ रवाना हो गए। अस्तगफिरुल्लाह। घर पहुंचते ही खाला जमीला बिस्तर पर लेटे और चंद ही लम्हों में गहरी नींद सो गई। क्या हुआ अब्बा जी, आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? बेटी रुखसाना, क्या बताऊं, आज जमीला ने बेकरी में ऐसी हरकत की कि मेरा दिल कांप उठा। हरकत? क्या मतलब अब्बा जी? बेटी रुखसाना, आज बेकरी का सारा सामान, बिस्किट, डबल रोटियां, आटा, चीनी, देसी घी, सब कुछ तुम्हारी खाला जमीला अकेली ही साफ कर गई। यहाँ तक कि जमीला के मुंह पर आटा भी लगा हुआ था। या अल्लाह, अब्बा जी घर में भी यही हाल है। न चावल बच्चे हैं न दाल, सब खाला ने खा लिया है। कच्ची सब्जियां और ताज़ा फल भी निगल गई। बेटी, ये औरत तो हमें भीख मांगने पर मजबूर कर देगी। अब्बा जी, अब हमें जल्द ही कुछ न कुछ करना होगा। ठीक के रही हो मेरी बेटी। मैं एक बाबा जी को जानता हूँ जिनका नाम बाबा मुख्तियार है। ये बहुत पहुंचे हुए बुजुर्ग हैं। इंशाअल्लाह वो इस जमीला नामी बला से हमें जरूर निजात दिलाएंगे। इंशाअल्लाह। फिर क्या था, शरीफ मियाँ बाबा मुख्तियार के आस्थाने की तरफ रवाना हो गए। बाबा मुख्तियार जंगल के बीचों बीच एक छोटी सी कोटिया में अकेले रहते थे।
जादू टूने के असरात बाबा मुख्तियार के चेहरे पर साफ झलकते थे, कालिक और फटकार की सूरत में, जो देखने वाले के दिल में एक अजीब सा खौफ बैठा देते। सर्द मौसम की एक खामोश शाम थी। बाबा मुख्तियार अपनी छोटी सी कोठिया में बैठे काले कौवे का गरम गरम सौंप पी रहे थे कि अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। अरे इस वक्त कौन आ गया? कौन है दरवाजे पर? बाबा जी, मैं शरीफ। कौन शरीफ? बाबा जी, मैं पास के गांव से अपना मसला लेकर आया हूं। अगर आप उसे हल कर दें तो उसके बदले में मैं आपको बहुत से पैसे भी दूंगा। बहुत से पैसे? अरे वाह, लगता है किस्मत खुद चलकर मेरे दरवाजे पर आ गई है। आओ मियाँ आओ, अंदर आ जाओ। जल्दी बोल, क्या मसला है तेरा? बाबा जी, कुछ दिनों से एक औरत हमारे घर में मौजूद है। वो अपना नाम खाला जमीला बताती है। हाथ नीचे करके बात कर, गुस्ताख बूढ़े। जी बाबा जी, गुस्ताखी माफ। वो तरस खाकर मैंने जमीला को पनाह दी, मगर उसने तो मेरी बेकरी और घर का सारा सामान खा लिया है। अब हालत यहाँ तक पहुँच गई है कि कुछ भी बाकी नहीं बचा। बाबा जी, अब भी वो खाला जमीला हर वक्त कुछ न कुछ खाने का मुतालबा करती रहती है। अच्छा, तो वो बुढ़िया तुम्हारे घर है? क्या मतलब बाबा जी? क्या आप इस बुढ़िया को जानते हैं? हाँ, कुछ दिन पहले वो बूढ़ियां आसमान से उस जंगल में उतरी थीं और फिर तुम्हारे गांव की तरफ चली गई। वो इस दुनिया की नहीं है, बल्कि किसी और दुनिया से आई है, इसीलिए उसकी खुराक भी बहुत ज्यादा है। वो किसी भी वक्त तुम लोगों को बड़ा नुकसान पहुंचा सकती है और इस दुनिया की कोई कीमती चीज अपने साथ अपनी दुनिया ले जा सकती है। बाबा जी, अब हम क्या करें? देखो, मेरे पास इसका हल मौजूद है। मेरे पास एक जादुई माला है जिसे मैंने दिन रात जादू टूना करके तैयार किया है। ये माला ही मेरी सारी जिंदगी की कमाई है। कल शाम जादुई माला लेकर मैं तुम्हारे घर पहुंच जाऊंगा। बस इस माला को बूढ़िया जमीला के गले में डालना है। इसके बाद माला अपना असर दिखाएगी और खाला जमीला अपनी दुनिया में वापस चली जाएगी। मुझे मेरा इनाम यानी पैसे मिल जाएंगे और तुम्हें इस बला से हमेशा के लिए निजात मिल जाएगी। ठीक है बाबा जी, हम आपका इंतजार करेंगे। चल अब दफा हो जाए यहां से, वरना तुझे इस आग में डालकर भस्म कर दूंगा। जी जी बाबा जी। ये कहकर शरीफ मियाँ तेजी से झोंपड़ी से बाहर निकल गए और आग की लपटों के साथ बाबा मुख्तियार की खौफनाक हिंसी गूंजने लगी। फिर क्या था, अगले ही दिन बाबा मुख्तियार जादुई माला लेकर गांव पहुंच गए। इसी वक्त खाला जमीला सहन में खड़ी मज़े से कुच्चे अमरूद खा रही थी। शरीफ मियाँ और रक्साना एक तरफ खामोशी से खड़े ये सब मंजर देख रहे थे। जैसे ही बाबा मुख्तियार ने माला खाला जमीला के गले में डाली, खाला ने बाबा को पकड़ा और अपनी दुनिया की तरफ परवाज कर गई, साथ बाबा मुख्तियार को भी ले गई। यूं बाबा मुख्तियार को भी अपने सारे काले करतूतों की सज़ा मिल गई और वो खाला जमीला की दुनिया में चले गए। शरीफ मियाँ और रक्साना वहाँ खड़े हैरत और सुकून दोनों के मिले जले जज्बात के साथ ये सब देख रहे थे और दिल ही दिल में अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे थे कि अब वो बला हमेशा के लिए दूर हो गई।